Hello friends, welcome to Gyanmed Academy. Today we'll discuss key takeaways of 12th Ministerial Conference of WTO. ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेंस और प्रीलिम्स दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर आप पिछले प्रीवियस पेपर्स को देखेंगे तो WTO के ऊपर मेंस में मेनी टाइम्स क्वेश्चन पूछे गए हैं और प्रीलिम्स में भी पूछे गए हैं. सो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है. विल डिस्कस इट इन सम डिटेल. सो बिफोर वी डिस्कस, let's know what is WTO. WTO is World Trade Organization and is the only international organization that deals with rules of trade between countries. The aim of WTO is to have open trade for the benefit of all. Open trade for benefit of all. Right. WTO commenced operation on 1st January 1995 after the 1994 Marrakesh Agreement, which replaced GATT Agreement, that is General Agreement on Tariff and Trade, which was earlier established in 1948. So ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, Marrakesh Agreement और GATT Agreement. WTO is run by 164 countries, total इसके 164 members हैं, and they together control 98% of global GDP and trade. Right. All decisions of WTO are taken by consensus और हर मेंबर के पास वीटो पावर होता है. जैसे कि यूएन के 5 परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर है, वैसे ही WTO के सारे मेंबर्स के पास वीटो पावर होता है. इसीलिए WTO इज सीन एज वन ऑफ द मोस्ट डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन इन ग्लोबल सिनेरियो. 12th WTO Ministerial Conference. It was held this year from 12 to 17 June 2022. Earlier this 12th Ministerial Conference was to be held in 2020, लेकिन कोविड पैंडमिक की वजह से इसे एक्सटेंड किया गया 2021 में. लेकिन जब सेकेंड वेव आया तो उसके बाद फिर इसे एक्सटेंड किया गया 2022 में. और इनिशियली इसे एज पर द साइकिल इसे होना था कजाकिस्तान की कैपिटल नूर सुल्तान में, बट आफ्टर कोविड पैंडमिक इट वाज शिफ्टेड टू जेनेवा. जेनेवा इज ऑल्सो हेडक्वार्टर ऑफ WTO. एंड इससे 11th जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस था, just for your information and from prelims point of view, was held in Argentina in December 2017, Buenos Aires. Ministerial Conference is the WTO's top decision making body जिसमें and it meets every 2 years. It is participated by countries ministers or their delegates or ambassadors. All WTO members are involved in ministerial conference and they can take decisions on matters covered under any multilateral trade agreement. तो किसी भी multilateral trade agreement के ऊपर में से किसी भी मैटर के ऊपर डिसीजन ले सकते हैं WTO के members ministerial conference के दौरान. Now 4 key takeaways at 12th WTO Ministerial Conference. So this year's WTO 12th Ministerial Conference is very important because generally WTO में agreement होना बहुत tough काम होता है. और अगर आप देखें तो पिछली दफ़ा 11th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो कि ब्यूनस आयर्स में हुआ था, वहाँ भी एक इम्पास हो गया था बिकॉज US डिड नॉट अग्री टू सम थिंग्स. सो नो मेजर डिसीजंस वेयर अग्रीड. कोई बड़ा डिसीजन नहीं हो पाया था. तो इसलिए ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4 एग्रीमेंट यहाँ कंसेंसस से बन पाएँ. फर्स्ट वन इज कर्टेलिंग हार्मफुल फिशिंग सब्सिडीज. WTO members passed a multilateral agreement to curb harmful subsidies on illegal, unreported and unregulated fishing for next 4 years. Next 4 years से important है काफ़ी. To protect global fish stocks. तो 4 years के लिए illegal, unreported and unregulated fishing पे से harmful subsidies को कर्ब किया जा रहा है. Current agreement which establishes new trading rules is second multilateral agreement in WTO's history. तो स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट होना काफ़ी मुश्किल होता है. सो हेंस इट इज़ वेरी हिस्टोरिक इन दैट सेंस. इंडिया एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज were able to win some concessions. Artisanal and traditional farmers would not face any restriction. Right. What is artisanal fishing? Artisanal fishing is urban fishing. जो अर्बन एरियाज में जो कंसनट्रेटेड फिशिंग होती है, हैचिंग करवाते हैं, उसे आर्टिजनल फिशिंग कहते हैं एक सेंस में. और ट्रेडिशनल फार्मर्स जो हैं उनको इस कर्व से अलग रखा गया है. ग्लोबल फूड सिक्योरिटी. दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट agreement that was achieved at WTO's ministerial conference. Members agreed to a binding decision to exempt food purchased by UN's World Food Program
for humanitarian purposes from any export restriction, right? So we have seen कि फूड की कितनी कमी हो रही है, स्पेशली ड्यू टू यूक्रेन रशिया क्राइसिस, जो कि वीट बाउल माना जाता है यूक्रेन, तो फूड की काफ़ी कमी हुई है. ऑल्सो ड्यू टू कोविड पैंडमिक व्हेन ग्लोबल सप्लाई चेन वाज अफेक्टेड, एंड सीरियन क्राइसिस, अफगानिस्तान क्राइसिस. तो इसलिए members have agreed to exempt World Food Program from export restriction. Countries would be however allowed to restrict food supplies to ensure domestic food security needs. तो ये कंसेशन दिया गया है कंट्रीज़ को कि डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी नीड्स को प्राइमेसी दी जाएगी, और ये डेवलपिंग कंट्रीज़ का डिमांड भी था कि ये जो एग्जम्पशन है इसे हटाया जाए. ऑल्सो इंडियाज़ की डिमांड वाज टू अलाउ एक्सपोर्ट फूड फ्रॉम इट्स पब्लिक स्टॉक होल्डिंग्स टू अदर कंट्रीज़. इंडिया की एक डिमांड थी कि जो फूड एक्सपोर्ट के आइटम्स हैं उसे अलाउ किया जाए पब्लिक स्टॉक होल्डिंग्स. जैसे इंडिया, कंट्रीज़ लाइक इंडिया, आपको पता है फूड सिक्योरिटी के अंदर हम पब्लिक स्टॉक होल्डिंग करते हैं फूड की, जैसे कि एमएसपी प्राइस पे ख़रीद के भी. तो उसको चाहते था इंडिया और सम डेवलपिंग कंट्रीज़ कि इसे एक्सपोर्ट अलाउ किया जाए, बट दिस विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस इन 2023. E-commerce transactions. WTO members had first agreed not to impose custom duties on electronic transmissions in 1998. जब 1998 में जब इंटरनेट नया था, टू प्रमोट ट्रेड थ्रू डिजिटल मीन्स, WTO ने एक अग्रीमेंट किया था कि हम कस्टम ड्यूटीज़ नहीं लगाएंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशंस पे, और तब से ये एक्सटेंड होता आ रहा है. तो इंडिया और अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ वांटेड कि इस एक्सटेंशन, ये जो मोरेटोरियम लगा हुआ है कस्टम ड्यूटीज़ पे, इसको हटा दिया जाए, विच इंक्लूड डिजिटल ट्रेड गुड्स एज वेल एज सर्विसेज. लेकिन इस पर एक ब्रॉड एग्रीमेंट ये हो गया है कि मोरेटोरियम जो है वो अभी कंटिन्यू रहेगा टिल 31 मार्च 2024 और नेक्स्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस विच एवर हैपन्स फर्स्ट. तो ये मोरेटोरियम एक्सटेंड हो गया है फिर से. नाउ फाइनली एंड लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट ऑन ट्रिप्स वेवर ऑन वैक्सीन. वी हैव सीन the crisis and the criticism felt during COVID-19 कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में सेकेंड डोज भी मिल रहा है, लेकिन कंट्रीज़ लाइक अफ्रीका, उन्हें वैक्सीन का पहला डोज भी नहीं मिल पा रहा था बिकॉज द कॉस्ट वॉज वेरी हाई एंड दे डिड नॉट हैव टेक्नोलॉजी. तो WTO मेंबर्स ने एग्री किया है टू टेम्परेरली वेव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पेटेंट्स ऑन कोविड-19 वैक्सीन बिना कंसेंट के पेटेंट होल्डर्स के, लाइक मॉडर्ना और वाट एवर कंपनीज develop this vaccine like Pfizer for next 5 years. India and South Africa wanted in 2020 to have a broader intellectual property waivers on vaccine treatments and tests. So India and South Africa ने 2020 में क्या propose किया था? Not only vaccine but also drugs and diagnostics to be included in TRIPS waiver, but this was not agreed by WTO. Waiver agreed by WTO has therefore been criticized by advocacy groups, जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप हैं, उन्होंने इसे काफ़ी क्रिटिसाइज किया है कि इट इज़ नैरो इन स्कोप बिकॉज ड्रग्स आर वेरी कॉस्टली एंड डायग्नोस्टिक्स, जो जैसे कि नए ड्रग्स आते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ या जिस पे भी पेटेंट्स हैं नए ड्रग्स पे, उस पे से पेटेंट हटाना चाहते हैं ताकि डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया, जिन्हें कि जेनेरिक मेडिसिन का पावर हाउस कहा जाता है, वो बिना पेटेंट लाइसेंसिंग के उन्हें डेवलप कर सके फॉर ईजी एक्सेसिबिलिटी. Now there has been some criticism and comments on these 4 agreements. इसमें जैसे कि अभी हमने देखा था एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट के मोरेटोरियम ऑन कस्टम ड्यूटीज़ को एक्सटेंड किया गया है. इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 2017 से 20 के दौरान जस्ट फॉर 3 ईयर्स ये जो मोरेटोरियम था ऑन 49 प्रोडक्ट्स ऑन कस्टम ड्यूटीज़ फॉर डिजिटल प्रोडक्ट्स, इसकी वजह से रेवेन्यू लॉस हुआ है डेवलपिंग कंट्रीज़ एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को ऑफ $56 बिलियन. तो इस मोरेटोरियम की वजह से जस्ट 49 प्रोडक्ट्स के ट्रेड में $56 बिलियन का नुकसान हुआ है डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज़ को, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को. एंड एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज़, लाइक हमने देखा कि WTO हैड अग्रीड टू कर्ब सब्सिडीज ऑन इलीगल फिशिंग टू इंक्रीज ग्लोबल स्टॉक ऑफ फिशेस. इट इज़ मैच्ड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14.6. लेकिन ये भी अग्री किया गया है इस एग्रीमेंट में कि इफ नेगोशिएशन फेल दिस एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज विल स्टैंड टर्मिनेटेड. It has been provided in Article 12 of the agreement. Now, prelims point of view से ये important term है Geneva Package. These 4 agreements are together called Geneva Package. इसे Geneva Package का नाम गया है. अब hasn't made changes, इसके बारे में एक और criticism है कि everyone they couldn't agree to
गिव एक्सेस दैट वाज नीडेड फॉर एवरीवन, जो चीज़ें चाहिए थी दुनिया में, ज़रूरत खास के इस पैंडमिक के दौरान कोविड-19 की, वो नहीं प्रोवाइड किया गया, लाइक लाइफ सेविंग हेल्थ प्रोडक्ट्स, जबकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आज के दिन लोगों को, अभी भी कोविड तेज़ी से फैल रहा है, तो ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक्स की वेवर डब्ल्यूटीओ ने नहीं दिया, इस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ है। लेकिन मेंबर्स को 6 मंथ दिए गए हैं फॉर एक्सटेंशन ऑफ दिस डिसीजन फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंड सप्लाई ऑफ कोविड-19 डायग्नोस्टिक्स एंड ड्रग्स थेरापेटिक्स। सो अभी 6 मंथ का टाइम दिया गया इस एक्सटेंशन पे, बट सो फार इट इज़ बीइंग क्रिटिसाइज्ड। सो एट द एंड we'll see what major people have said about these agreements. So WTO Director General Ngozi Okonjo-Iweala has said that for the first time WTO members concluded an agreement with environmental sustainability at its heart. This was her comment on agreement on fisheries subsidies. This directly and indirectly affects more than 260 million people across the world who are dependent on fishing. So it is a very important agreement. And our Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said that WTO Ministerial Conference we fully protected the interest of farmers, MSMEs, fishermen, and there will be no burden on them. जैसे कि हमने देखा इंडिया को काफ़ी सारे कंसेशन मिल गए दैट इंडिया डिमांडेड, बट इंडिया टू हैड टू गिव इन ऑन सम लाइक मोरेटोरियम ऑन कस्टम ड्यूटीज और एग्जेम्पशन फ्रॉम ग्लोबल फूड प्रोग्राम दैट वाज नॉट अग्रीड टू. सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग टू अस. और अगर आपकी कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, तो आप काइंडली हमारे कमेंट बॉक्स में दें ताकि हम इसको इनकॉर्पोरेट कर सकें. थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच.